are safe and are doing great, and welcome back to my channel Young Tutor. So this is the part 2 of our chapter Light, where in the part 1 we discussed many features of light, many characteristics of light, and the types of different types of objects, and which objects are able to form your basically shadow, and the objects which are not very showing that property of casting of not casting the shadow. So those were few properties and characteristics about light which we discussed, and then I said that today we shall start with the laws of reflection. But again, with starting the laws of reflection, we must revise what was reflection. Reflection was nothing but it was the bouncing back of the light. It was the bouncing back of the light, back of the light from a source, from an object, we can say. Okay. Now, whenever reflection will happen, there will be different laws of reflection which will laws of reflection which will also take place. So we can write first law of reflection. Sorry. First law of reflection. First law of reflection states that the incident ray, there are some terms which I am introducing: the incident ray, the normal, and the reflected ray. The incident ray, the normal, and the reflected ray all lie on the same plane. This means कि सारा जो आपका इंसिडेंट रे है, जो नॉर्मल है, जो आपका रिफ्लेक्टेड रे है, सारे एक ही सरफेस के प्लेन पे लाई करेंगे. जैसे कि ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, ये मैंने मिरर ले लिया. दिस मीन्स इट इज द पॉलिश साइड. जहाँ पे भी मैं ऐसे लाइंस बनाऊंगी, इट मीन्स इट इज अ पॉलिश्ड साइड. यहाँ से मैंने एक रे ऑफ बीम डाली और यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे. सो ये बेसिकली मेरा है इंसिडेंट रे. इंसिडेंट रे, ये मेरा आ गया रिफ्लेक्टेड रे, और ये मेरा यहाँ आ गया नॉर्मल. ठीक है. इसके बजाय, इन दोनों के बजाय आप पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी लिख सकते हैं. दैट इज ऑल्सो करेक्ट. और द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस विल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन. पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है? जहां पे ये तीनों मिलती हैं. द पॉइंट वेयर द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे meet on the mirror or meets on the object, this is known as the point of incidence. Point of incidence. ठीक है. चलिए, now we move on to the second law of reflection, जो ज़्यादा important है. सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स एंड वेरियस क्वेश्चंस आर फॉर्म्ड ऑन दिस सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन विच वी हैव बिन डूइंग दिस सिंस आवर ग्रेड 7th. यहाँ पे मैंने अगेन मिरर बनाया, यहाँ पे मेरी इंसिडेंट रे बनी, यहाँ पे मेरी रिफ्लेक्टेड रे बनी, और यहाँ पे मेरी नॉर्मल बनी. सो व्हाट इज नॉर्मल? नॉर्मल इज नथिंग बट इट इज एन इमेजिनरी लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू योर ऑब्जेक्ट और टू द मिरर. ये अगर ऑब्जेक्ट है तो यहाँ ऐसे एक इमेजिनरी लाइन सी बनती है जो परपेंडिकुलर होती है टू द ऑब्जेक्ट. इसको हम बोलते हैं नॉर्मल. Why am I using dotted lines? It is to show that it is an imaginary line. So basically ये कहता है that angle of incidence is equals to angle of reflection. ये incident ray थी, isn't it? ये हमारी incident ray थी. ये हमारी यहाँ reflected ray थी, और ये हमारा यहाँ पे नॉर्मल था. So the angle formed between the incident ray and the normal is the angle of incidence. This is represented as angle I, and the angle formed between the normal and the reflected ray is known as the angle of reflection, and it is represented by R. And this means angle I is equals to angle R. ठीक है.
if angle I is equals to angle R and this whole angle is 90 degree and this whole angle is also 90 degree, that means if this is angle X and this is angle Y, angle X is also equal to angle Y, क्योंकि एंगल I क्या बन गया, ये बन गया 90 माइनस I, और एंगल R क्या बन गया 90 माइनस R, ये एंगल Y है ना, और I और R दोनों एक दूसरे के इक्वल है, हेंस इट मीन्स दैट X इज ऑल्सो इक्वल्स टू Y. सो ये भी एक डिफरेंट टाइप का कंक्लूजन जो है वी कैन टेक आउट फ्रॉम दिस सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. नाउ अब जो रिफ्लेक्शंस होती है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है ऑन द बेसिस ऑफ द सरफेस. कैसा आपका सरफेस है उसके बेसिस पे आपकी दो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन होती है. पहले आपकी होती है एक रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरी आपकी होती है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन. रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि when your rays are parallel to the when all the rays are parallel to each other in the angle, जब आपकी सारी इंसिडेंट रेज बेसिकली पैरेलल होती है, जैसे ऐसे सारी इंसिडेंट रेज आपकी पैरेलल है और ये जाती भी कैसी है, पैरेलल है. ये ऐसे सारी रेज एक दूसरे के पैरेलल ही जाती हैं, इनको हम बोलते हैं कि यहाँ पे हो गया रेगुलर रिफ्लेक्शन. और ये रेगुलर रिफ्लेक्शन बेसिकली स्मूथ सरफेसेस पे होता है ना, जैसे कि आप मिरर वगैरह, और कोई भी सरफेस एब्सोल्यूट स्मूथ नहीं होता. तो जब भी हमें फिजिक्स में कुछ एब्सोल्यूट स्मूथ कंसिडर करना पड़ता है तो हम मिरर को कंसिडर करेंगे फॉर दिस चैप्टर लाइट. दूसरा इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि जब आपकी इंसिडेंट रेज जो है वो पैरेलल है, ये सारी इंसिडेंट रेज आपकी पैरेलल है, लेकिन जब इनका रिफ्लेक्शन हुआ तब इनकी जो रिफ्लेक्टेड रेज थी वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, वो डिविएटेड सी हो गई, ऐसी सी हो गई. जब आपकी इंसिडेंट रेज सारी पैरेलल थी बट आपकी रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल नहीं थी, वो डिविएटेड हो गई, तो बेसिकली आपका इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन हो गया. और ये बेसिकली हमारे रफ सरफेसेस में अकर होता है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन. और रफ सरफेसेस आपका कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे आपका टेबल हो गया, आपका कोई पेपर हो गया, ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये आपके इर्रेगुलर टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन शो करते हैं. बट नाउ द क्वेश्चन इज कि रेगुलर रिफ्लेक्शन तो हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे कर रहा है, बट इज आवर इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑल्सो ओबेइंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? Yes, my friends, irregular reflection is also obeying. It is also obeying all the laws of reflection. अब जब रिफ्लेक्शन हो रहा है तो उसके लॉज भी होंगे ही. अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो उसके लॉज भी ओबे डेफिनेटली होंगे. ठीक है, जहां पे भी रिफ्लेक्शन हो रहा है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन विल ऑल्सो टेक प्लेस. बट बात सिर्फ इतनी सी थी कि जब इनके सारे इंसिडेंट रेज पैरेलल थे और इसके रिफ्लेक्टेड रेज भी पैरेलल थे, लेकिन इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या हुआ, इंसिडेंट रेज सारी पैरेलल आई लेकिन आपकी रिफ्लेक्टेड रेज सारी उधरी मुधरी चली गई, पैरेलल नहीं है, नॉन पैरेलल हो गए. बट डेफिनेटली द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वर फॉलोड हियर एज वेल. ठीक है, सो ये हो गया. नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस विच इज ऑल्सो आस्क्ड इन एग्जामिनेशन एंड मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज द डिफरेंस बिटवीन एन इमेज एंड ऑब्जेक्ट. इज द डिफरेंस बिटवीन एन इमेज एंड ऑब्जेक्ट. ये भी एक बहुत अच्छा टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन है जो बेसिकली पूछा जाता है एग्जामिनेशंस में. वैसे ज़्यादा इतना पूछते नहीं है, बट स्टिल having a basic clear concept about things is something which is never going to harm us. Yes, so image और object में जब हम differentiation पढ़ते हैं, so image basically क्या है, एक optical illusion है. एक optical illusion है, ये एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ हमारी आँखों का धोखा है, जो असलियत में प्रेजेंट नहीं होती,
जो सिर्फ हमारी आंखें उसको विजिबल करती हैं, हम उसको टच नहीं कर सकते, हम उसको फील नहीं कर सकते. इट इज़ जस्ट समथिंग विच वी कैन सी, which we can observe. That is something which is known as an optical illusion. एक image जो है वो एक optical illusion है. और object क्या है? It is anything that can emit light. कोई भी ऐसी चीज़ जो light emit कर सकती है, या फिर रिफ्लेक्शन कॉज कर सकती है, या फिर खुद की रिफ्लेक्टेड लाइट दे सकती है, वैसे ऑब्जेक्ट को हम वैसी कोई भी चीज़ को हम एक ऑब्जेक्ट बोलते हैं. जैसे इमिट लाइट और गिव आउट रिफ्लेक्टेड रेज, वैसे ऑब्जेक्ट, वैसी चीज़ को हम एक ऑब्जेक्ट बोलेंगे. ठीक है. अब बेसिकली दोनों के दो टाइप्स होते हैं. इमेजेस के दो टाइप्स होते हैं जो हमने पढ़ रखा है पहले, वर्चुअल और एक होता है रियल. वैसे ही ऑब्जेक्ट्स भी दो टाइप के होते हैं. एक होता है पॉइंट ऑब्जेक्ट जिसको हम एक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक होता है आपका एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स जिसको हम अक्सर एरो से डिनोट करते हैं. नाउ वन ऑफ द बिगेस्ट मिसकंसेप्शंस पीपल हैव इन देयर माइंड इज कि अगर एक कोई टॉर्च है, अगर एक कोई फॉर एग्जांपल, सॉरी मेरी टॉर्च बहुत गंदी बनी है, अगर एक कोई टॉर्च है देन ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा, या अगर एक कोई कैंडल है तो ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा. लेकिन अगर एक कोई बड़ी सी कार है, देन वो एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होगा. बट यहाँ साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स की बात तो हो ही रही है, लेकिन द अमाउंट ऑफ रेज, कितना लेंथ है उसकी रेज का, कितना लंबा उसकी रेज जाती हैं, कितना ट्रैवल करती हैं, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स विच वी हैव टू कीप इन माइंड. जैसे कि सन है, sun is called to produce, is said to have been produced infinitely long rays, क्योंकि उसकी रेज इतनी लंबी है, वो चलती रहती है until and unless कोई ऑब्जेक्ट उसके बीच में नहीं आ रहा टू प्रोवाइड इट एज अ बैरियर. दैट मीन्स उसकी रेज बहुत लंबी है, और वो एक ऑब्जेक्ट में भी अगर हम देखें तो सन बहुत बड़ा है जितना हमें दिखता है. सो दैट इज वाई सन कैन बी कंसिडर्ड एज एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट. इट इज ड्यू टू द मोशन ऑफ द रेज, इट इज ड्यू टू द मोशन एक्वायर्ड बाय द रेज. ठीक है. Now in the next lecture we can start discussing more about the spherical mirrors. Second lecture में हम spherical mirrors, third lecture में हम spherical mirrors के ऊपर भी एक discussion करेंगे, and then we will see what are the types of spherical mirrors, and the image formed by a spherical mirror would also be discussed in the video. So if you like this video, don't forget to give it a like and subscribe to my channel.